participant to the 14th of the Life Enhancing course on Srimad Bhagavad Gita. Yesterday, we had a very enriching session on Adhyay 13th by Param Puja Swamini Shraddhanand Saraswati ji. And today, to enrich our souls on Adhyay 14, we have amongst us Param Puja Swami Viditatmath Saraswati ji. I request Swamiji to kindly come on the dais. Like yesterday, today's session will be divided into two sessions with a break of 10 minutes. Session 1 will be based on Adhyay 14th of Bhagavad Gita, and session 2 will be based on our theme Involve and Evolve, followed by question and answer round. Hence, I request you all to kindly note down your queries that arise during the sessions. Before we begin with our first session, I would take the honor of introducing our reverend speaker. His Holiness Swami Viditatmanand Saraswati ji is a disciple of Swami Dayanand Saraswati ji. He is an outstanding teacher of Vedanta. Having studied and worked in USA before being a sannyasi, he is familiar with the lifestyles of both India and USA. Traditional knowledge of Upanishads and contemporary approach in teaching is a unique teaching technique of Swamiji. He is a resident teacher of Tattva Tirth Ashram in Ahmedabad. He also conducts seminars on management, incorporating the values of Vedanta in modern management. Swamiji visits Arsh Vidya Gurukulam every year at USA to conduct Vedanta classes and camps from spring through summer. He also travels all over USA and Canada delivering lectures. Swamiji, we are really blessed by your presence. I now request our beloved students to come on the stage and welcome Swamiji with the bouquet and take his blessings. I now request Swamiji to bless us with his golden words. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitanastuma Vidvishavahai Om Shanti Shanti
शांति। बच्ची थोड़ी लाइट करी से क्या बिना में? Can you increase that intensity of light so I can see them? Lights have to be switched on or off. On. And Yes. ये लाइट्स बढ़ सकते हैं? ठीक है, all right, okay. ठीक है, जो भी है। हाँ, नहीं, देखो आप हमको देख सकते हो तो हम भी आपको देखना चाहिए ना। ठीक है, जो करना है कीजिए, जरूर जो भी करना है। ठीक है। तो आज हम भगवत गीता के चतुर्दश अध्याय 14वें अध्याय की चर्चा करेंगे। इस अध्याय का विषय है गुणत्रय विभाग। गुणत्रय का अर्थ है 3 गुणों का समूह। कौन से 3 गुण है दिखा समझाएंगे। सत्व, रजस, तमस, ऐसे 3 गुण है। ये 3 गुणों का समूह को गुणत्रय कहते हैं। गुणत्रय विभाग इस अध्याय में भगवान कृष्ण हमको ये 3 जो गुण है, सत्व, रजस और तमस, उस विषय में विस्तार से समझाएंगे। वे आप प्रश्न करेंगे तो हमको ये जानने से क्या फायदा है। चलो भाई 3 गुण है, एक सत्व गुण है, दूसरा रजोगुण है, तीसरा तमोगुण है, होंगे, हमको क्या है उससे। लेकिन नहीं, हमको उससे बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम जो है वो इन 3 गुणों से बने हुए हैं। हमारा व्यक्तित्व जो है ना, वो इस 3 गुणों से, सत्व, रजस और तमस, उससे बना है। इसलिए ये गुणों को समझने से हम अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को ठीक तरह समझ पाएंगे। तो सबसे पहली तो महत्व की बात यह है कि हमको अपने आप को ठीक तरह से समझना चाहिए। वैसे मैनेजमेंट में पर्सनालिटी के विभाग करते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, ऐसा से कहते हैं। लेकिन यहां भगवत गीता में उससे भी सूक्ष्म रूप से हमारे व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है। हम अपने को, हमको समझे, और समझने के बाद हमको जीवन में
सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए? हम सब जीवन में सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि सक्सेस किसको कहते हैं, सफलता साफल्य किसको कहते हैं, उसके बारे में प्रत्येक को अपने अपने ख्याल होते हैं। लेकिन हम तो सक्सेस की, सफलता की बहुत सरल व्याख्या करेंगे। वैसे सफलता किसको कहते हैं? हमारी इच्छा जब पूर्ण होती है, देन वी फाइंड अवरसेल्फ सक्सेसफुल। व्हेन माय डिजायर इज फुलफिल्ड, हमारी इच्छा पूर्ण हुई, हम सफल हुए। हमारी क्या इच्छा है? हम ऐसा प्रश्न यदि आपको पूछेंगे, कोई कहेंगे स्वामी जी हम तो वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, हम धनवान बनना चाहते हैं, प्रतिष्ठित बनना चाहते हैं, प्रसिद्ध बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन ये सब बनने के बाद भी क्या, ये क्यों हम ये बनना चाहते हैं? धनवान बनने से क्या होगा? सत्तावान बनने से क्या होगा? प्रतिष्ठित बनने से क्या होगा? सबको संपत्ति, प्रतिष्ठा, सत्ता के लिए बहुत आकर्षण है, होना चाहिए। और ये सत्ता, प्रतिष्ठा, संपत्ति प्राप्त करने से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, ऐसा दुनिया ने हमको ऐसा ख्याल दिया है। क्योंकि सारी दुनिया इस ध्येय के पीछे है, दौड़ती है। इसलिए बचपन से ही हमारे मन में भी यही दृढ़ हो गया है कि हमको सफल बनना है, धनवान बनना है, प्रतिष्ठित बनना है, सत्तावान बनना है। लेकिन आगे एक प्रश्न करेंगे, यदि हम ऐसा बने तो भी क्या, हमको क्या होगा? ये सब इच्छाएं पूर्ण करने से हमको क्या मिलेगा? उत्तर बहुत स्पष्ट है, हमको सुख मिलेगा। यदि हम हमारे मन को ठीक तरह से समझेंगे तो मन में स्पष्ट होगा कि हम कभी दुखी होना नहीं चाहते हैं और हमेशा सुखी बनना ही चाहते हैं। हमको संपत्ति चाहिए, धनवान बनना चाहते हैं, किस कारण से? कि हम सुखी बने। हमको प्रतिष्ठा चाहिए, क्यों? हम सुखी बने। सत्ता चाहिए, क्यों? हम सुखी बने। ये समझना बहुत महत्व की बात है। हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं, ये समझने की इसलिए जरूरत है कि हम किसी विरुद्ध चीज के पीछे नहीं जाएंगे। हम उसके पीछे नहीं जाएंगे जो हमको दुखी करेंगे, हमको सुखी बनना है। हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय है हमको सुखी बनना है। और एक बड़ी बात तो यह है, जो सुख है वो कोई हमारे बाहर नहीं है, सुख तो हमारे मन का स्वभाव है। हमको सुख चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको दुख चाहिए।
सब जीवंत प्राणियों को सुख चाहिए, वो तो ठीक ही है, लेकिन हम तो सुख की प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति के साथ हम सुख को हमेशा जोड़ते हैं। हम कहते हैं सत्ता मतलब सुख, प्रतिष्ठा मतलब सुख, संपत्ति मतलब सुख। ऐसा एक इक्वेशन, समीकरण हमारे मन में स्थिर हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं सारी दुनिया इसके पीछे ही है। इतना ही नहीं, लेकिन दुनिया किसका आदर करती है, किसका सम्मान करती है? जिन्होंने ये प्राप्त किया हो। आप अखबार खोलेंगे तो किसका नाम आएगा? जो सबसे धनवान है, प्रतिष्ठित है, सत्तावान है। हम नहीं कहते हैं कि आपको ये नहीं चाहिए, ये नहीं सिद्ध करना है, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि जीवन में इतना प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। उसके साथ में क्या चाहिए? उसके साथ में सुख चाहिए। इस सुख जो है वो हमारे मन की अवस्था का नाम है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस, ये सुख कोई बाहर नहीं है, ये तो हमारे मन की ही अवस्था है। इसका क्या अर्थ हुआ? यदि हम सच्चे अर्थ में सुखी होना चाहते हैं तो हमको हमारे मन का निर्माण करना है। निर्माण का मतलब पता है आपको? जैसे कोई शिल्पी, स्कल्पचर शिल्पी होता है ना, वो पत्थर में से मूर्ति का निर्माण करता है। ये पत्थर कैसा दिखता है? कुछ घाट नहीं होता है, आकार नहीं होता है, कुछ सुंदरता नहीं दिखती है हमको, लेकिन जो शिल्पी होता है ना, उसको तो ऐसे पत्थर में भी बहुत सुंदरता दिखते हैं। और शिल्पी क्या करता है? उसने जो दर्शन किया है, एक सुंदर मूर्ति का वो निर्माण करता है। उस सुंदरता को आच्छादित करने वाली जो है वो धीरे धीरे आवरण दूर करता है, और जो स्वाभाविक सुंदरता है उसका आविर्भाव करता है। ठीक है ना? वैसे ही ये सुख है ना, वो तो हमारा स्वभाव है। उसका अर्थ ये हुआ कि थियोरेटिकली, सिद्धांत की दृष्टि से सुख हमारा स्वभाव होने के कारण हम हमेशा सुखी होना चाहिए। हमको कभी दुख होना ही नहीं चाहिए। यदि ये शर्करा है, शुगर, तो स्वीटनेस, मधुरता और स्वभाव तो हमेशा स्वीट होती है, मधुर होती है ना। ऐसा होता है कि भी शक्कर सुबह में मधुर है, दोपहर में खड़ुई भी हो जाएगी, शाम को कुछ खट्टी हो जाएगी, ऐसा होता है? तो आप कहते हैं सुख हमारा स्वभाव है, तो सुबह में शाम हमेशा सुखी होने चाहिए कि नहीं चाहिए? होने चाहिए। इसलिए सबको सुख के लिए प्रेम है, किसी को दुख के लिए नहीं, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है और वो ही हम चाहते हैं। आप कॉलेज में आए हैं, आप पढ़ेंगे, ठीक ठीक सब व्यवसाय करेंगे, जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी एक ही अभिलाषा होती है, वो है हमको सुखी होना है।
सक्सेसफुल होना है या तो सुखी होना है। लेकिन एक स्ट्रेंज का मतलब विचित्र बात यह है कि जो सुख हम चाहते हैं वो तो हमारा स्वभाव ही है। समझ में आया? हम बाहर खोजते हैं वह अलग है। हम तो समृद्धि में खोजते हैं, सत्ता में खोजते हैं, प्रतिष्ठा में खोजते हैं, बहुत सी चीजों में खोजते हैं, मित्र में, समाज में, बहुत जगह हम सुख की खोज करते हैं। वो कहाँ है? हमें है। ऐसा हो सकता है? देखो, आपने तो बहुत भगवत गीता सुनी इतने दिनों में, हमको पता नहीं है। ये जो आगे वक्त बहुत विद्वान वक्ता थे, उन्होंने क्या क्या सब कुछ कहा होगा आपको। लेकिन आपको किसी ने वो 10th मैन स्टोरी कही है? 10वां आदमी 10th मैन स्टोरी कही है? देखो भाई, एक बार एक विलेज में, गांव में कुछ बच्चे थे। उनको एक बार ख्याल आया कि हमको कुछ बाहर पिकनिक करना है, ट्रिप लगानी है। लेकिन विलेज में अपने आप कुछ निर्णय नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब बच्चे मिलके विलेज के जो वृद्ध थे उनके पास गए। पूछा कि हमको ऐसा बाहर जाना है, यदि आप आज्ञा अनुज्ञा देंगे तो हम बाहर जाएंगे। वो तो ठीक है, जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि आप बाहर जाएंगे, पहली बार बाहर जाते हैं, इसलिए किसी को आपकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप में से एक होना चाहिए जो सबकी जिम्मेदारी लेगा कि हम सबको वापस लाएंगे, सलामत वापस लाएंगे। इतना हाथ ऊंचे, हम लाएंगे, लीडर। ठीक है। फिर वो वृद्ध जन ने कहा कि चलो भाई, आप हमारे सामने कतार में खड़े रह जाइए, हम गिनती करेंगे आप कितने हैं। सब खड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे थे। देखो भाई, आप 10 लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है, उसको कहा कि सब 10 लोग वापस आने चाहिए, सलामत वापस आने चाहिए, सेफ। ठीक है। सब दूसरे दिन गए, बाहर गए, बीच में एक नदी आई, उसको पार कर दिया। फिर जो ये नेता था ना, उसको लगा कि चलो ये आगे जाने से पहले हमको तय करना चाहिए कि सब लोग सलामत आ गए हैं कि नहीं। उसने भाई हमको गिनती करनी है, हम सब सलामत है क्या नहीं। गिनती कैसे करने की? सब सामने खड़े हो जाइए। उसे देखा था ना, को वृद्ध ने कैसे गिनती की थी। उसने अपने मित्रों, चलो सब खड़े हो जाए कतार में, हम गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए? लेकिन निकले सिर्फ 10 थे। 10 थे ना। अगली शाम को गिनती की, तब वे 10 थे। अब ये गिनती करते हैं। उसको कुछ चिंता हुई कि भाई 9 क्या, 10वां कहाँ गया। फिर से गिनती की, इधर से उलट पुलट सब तरह गिनती की, कितने हुए संख्या? 9। 10वां खो गया, उसको खोजना चाहिए। सारे दिन उन लोगों ने 10वें लड़के की खोज की, मिला उनको? क्यों नहीं मिला? जो खोज रहा था वो, ऐसा होता है ये, ऐसे भी सभी अभी ऐसा सुना है कभी? जो खोज रहा था वो अपने आप ही था, ऐसा हो सकता है? ऐसा हमारे जीवन में है। हम किसकी खोज करते हैं? सुख की, सफलता की, सक्सेस की,
शांति की। हमको प्रेम चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको आनंद चाहिए। कहां से चाहिए? इसमें से चाहिए, उसमें से चाहिए, वहां से चाहिए, सब जगह खोज करते हैं। कौन खोज करता है? जो सुख है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो ही बाहर से इसकी खोज करता है। कभी मिलेगा? इसलिए ये सुख क्या है? बाहर से प्राप्त करने की चीज नहीं है, उसका अंदर से आविर्भाव करना है। जैसे शिल्पी है, पत्थर में से आविर्भाव करता है, वैसे हमको अपने में से एक सुंदर व्यक्तित्व का आविर्भाव करना है। जैसे पत्थर में वो सौंदर्य है ही, वो आर्टिस्ट को दिखता है, शिल्पी को हमको नहीं दिखता है, उसको दिखता है। वैसे ऐसी सुंदरता हमारे में है ही। आप हम सब कैसे हैं? सुंदर है, उत्तम है। आपने सुना है, इन दिनों में सुना है, आप क्या है? ब्रह्म है। क्या है? सुना आपने ये शब्द, ब्रह्म शब्द? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मतलब क्या? मैं पूर्ण हूं, शुद्ध हूं, सुंदर हूं। तो स्वामी जी, हमारा हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? यदि ये सुंदरता, शांति, प्रेम, सुख हमारा स्वरूप है, तो हमको हमेशा उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो किसी आवरण के पीछे ढक गया है। हमको आवरण दूर करना है, ये हमारे जीवन का पुरुषार्थ है। इस यहां कहा वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स। आपको वैल्यू सीखना है। कौन सी वैल्यू है? पहली क्या वैल्यू है? सुख वैल्यू है, जो हमको सबसे प्रिय है, हम चाहते हैं। चलो, वो तो ध्येय है। वैल्यू किसको कहें? साधन को वैल्यू कहेंगे। ध्येय क्या है? सुख है। साधन क्या होगा? जिससे हमारे सुख का आविर्भाव होता रहे। सुख तो है, हमारा स्वरूप है, हमको अनुभव नहीं होता है, तो हमको क्या कहें? आवरण दूर करना है, जो अवरोध है, प्रतिबंध है, दूर करना है, और सुख का आविर्भाव करना है। इसके लिए भगवान इस अध्याय में ये 3 गुणों की चर्चा करते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो चलो भाई, आपके पास तो पुस्तक है 134 पेज। मिल गया? उसमें 5th वर्स, 5वां श्लोक कहते हैं सत्वम रजस, पेज 134 वर्स नंबर 5। वो 5 तो पढ़ सकते हैं ना हिंदी? हाँ। ये श्लोक कहता है सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। हाँ, अच्छा, इसमें तो ये भी है इनके पास। यू हैव दिस बुक? ओके, चलो इसमें देखना है तो इसमें देख लीजिए। चलो भाई, वन 182, राइट। इसमें पेज 182 वर्स 5, सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। ये अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण है। यहाँ भगवान ये 3 गुण के नाम कहते हैं। गुण किसको कहेंगे? क्वालिटी। गुण का अर्थ क्या है? क्वालिटी। लेकिन यहां ये गुण शब्द जो है वो किस अर्थ में
प्रयुक्त किया गया है स्वभाव। किस अर्थ में? स्वभाव के अर्थ में। भगवान कहते हैं कि हमारा स्वभाव 3 प्रकार का होता है, सत्व से बना हुआ, रजस से बना हुआ, तमस से बना हुआ। सात्विक स्वभाव होता है, राजस स्वभाव होता है, तामस स्वभाव होता है। यहाँ भगवान हमारे स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, हम कैसे हैं, पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। भगवान कहते हैं हमारी पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व है, मन है, वो इस सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुणों से बना हुआ है। आप पूछेंगे भी ये सत्व का अर्थ क्या है, रजस का क्या अर्थ है, तमस का क्या अर्थ है? तो देखो उसके बाद का श्लोक है, इसमें नंबर नहीं है ये श्लोक, अच्छा है 6th वर्ष, इसके पीछे पाद का। कहा कहते हैं तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं चलो भाई ये 3 गुणों का तो हमने निर्देश किया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों के मध्य में सत्वगुण कैसा होता है? मतलब हमारा मन जो है ये सत्व, रजस, तमस, ये 3 गुण कहो, 3 स्वभाव से बना है। और पहले तो भगवान हमको समझाते हैं कि सत्व गुण का क्या स्वभाव है, रजोगुण का क्या स्वभाव है, तमोगुण का क्या स्वभाव है। तो ये 6th वर्ष, 6ठे तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। हे निष्पाप अर्जुन, उन 3 गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। ये कभी कभी हमारा मन ऐसा उत्तम हो जाता है, हमारे मन में जब सत्व का प्रभाव रहता है आप नेक्स्ट पेज पे 10th वर्स देखिए, उसमें कहा है रजस तमस चा विभूय सत्वम भवति भारत, रजस सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस्तथा। पेज 183 वर्स नंबर 10। ये गुणों के बीच में कुछ न कुछ संघर्ष, लड़ाई चलती है। हमारे मन में 3 चीजें हैं, 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये प्रत्येक गुण अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है। जैसे 3 मित्र बात करते हैं ना, प्रत्येक ये बोलेगा उसे जोर से वो बोलेगा, ये बोला हम सच्चे हैं, हम ठीक है। जैसे ये 3 लोग मिलते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति मैं ठीक हूं, मैं बराबर हूं, मैं बलवान, ऐसा प्रयत्न। ऐसे ही ये 3 गुण जो है ने वो प्रत्येक तो भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया, कभी कभी रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर सत्व जो होता है ने वो
बढ़ता है, प्रभावशाली होता है। कभी कभी सत्वगुण है वो दूसरे दो गुणों को दबाकर अपना प्रभाव दिखाता है। कभी कभी रजोगुण है उस सत्व को, तमस को दबाकर प्रभावशाली होता है। कभी कभी तमोगुण प्रभावशाली होता, मतलब हमारा मन एक समान नहीं होता है। आप जानते हैं कि हमारा मन बदला, सतत परिवर्तनशील है, वो कभी समान नहीं, स्थिर नहीं होता है, वो बदलता ही जाता है। कभी हम बहुत मूड में होते हैं, खुश होते हैं, कभी ठीक है कुछ अच्छा तो नहीं है, मजा नहीं है, डल हो जाते हैं। कभी कभी हमको बहुत उत्साहजन, कभी कभी हमको ये करना है वो कर, पर एक अशांत हो जाते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी अशांत हो जाते हैं, कभी डल हो जाते हैं, होता है ना। हमारा मन हमेशा एक समान नहीं रहता है, बदलता ही रहता है। जैसे जल का प्रवाह होता है ना, तरंग उठते रहते हैं, वैसे हमारे मन में ये सब तरंग उठते ही रहते हैं। उसको हम वृत्ति कहेंगे, विचार कहेंगे, विचार का प्रवाह चलता ही रहता है। कभी विचार बहुत बढ़िया होते हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम अपने से ही खुश हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है ना। कभी मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, तभी हम अपने से ही खुश हो जाते हैं। कभी होता है, ज्यादा नहीं, कभी कभी। कभी होता है आप सुबह में घूमने के लिए निकले हैं और सूर्योदय का दर्शन करते हैं, क्या होता है, प्रसन्नता हो जाती है। कभी शाम को आप अपने छत पे बैठे हैं, आकाश में नजर करते हैं, चंद्रमा का उदय होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। कभी व्हाट्सएप तो चलता है सर, उसमें कोई मित्र बहुत सुंदर मैसेज भेजता है, एक कविता की पंक्ति भेजता है, वो खुश हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। कभी कभी हम खुश हो जाते हैं ना, ज्यादा नहीं, कभी कभी। कब होता है, जब हमारे मन में सत्व गुण का प्रभाव होता है, तब हम कैसे होते हैं, खुश हो जाते हैं। वे क्यों खुश है यार, बस पता नहीं खुश है। ये खुशी कैसी है, किसी कारण के बिना ही है, ऐसे ही खुश है। ऐसे कभी होता है, ज्यादा नहीं, कभी कभी होता होगा। कभी सुबह उठते हैं तो खुश होते हैं, ऐसे ही खुश हो जाते हैं, कभी, ज्यादा नहीं। आजकल बहुत टेंशन होता है ना, स्वामी जी आपको क्या पता है, बहुत टेंशन है जीवन में, इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी एग्जाम देनी है, ये है वो है, घर में माता पिता ऐसे हैं, भाई बहन ऐसे हैं, मित्र ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बहुत स्ट्रेस है स्वामी जी, बहुत टेंशन है। आपको इतनी उम्र में इतना स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, स्वामी आपको क्या पता है, आप तो छोड़ के चले गए, अच्छा है आपने किया, कोई टेंशन नहीं, इसलिए तो सन्यासी बनते हैं। लेकिन आपको कोई नहीं बनने देगा। तो कभी कभी हो जाता है, मन टेंशन मुक्त हो जाता है, कोई कभी हो जाता है, कोई अच्छा समाचार आ गया, परीक्षा में पास हो गए, कुछ अच्छा वाक्य मिल गया, अच्छा मैसेज मिल गया, कभी हमारी इच्छा पूरी हो गई, खुश हो जाते हैं, होता है ना। तभी जब खुश होते हैं तभी मन की अवस्था क्या, इसको सात्विक अवस्था कहते हैं, सत्व का प्रभाव बढ़ता है, तो हम क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न शब्द आपको पता है, स्वच्छ शब्द आपको पता है, स्वच्छ, क्लीन। देखो जल होता है, जल एक छोटा सरोवर लेक है, उसमें जल है, वो जल में यदि कुछ
कचरा रहता है तब तो हमको उसके बॉटम में क्या है दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो जल जो है, वाटर जो है, शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए, उस स्वच्छ कहो, प्रसन्न कहो, तभी जल कैसा होता है आपको पता है? वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शक हो जाता है। मतलब उसके बॉटम में जो है हम क्लियरली देख सकते हैं। पता है आपको? आपने कभी कभी कोई जगह यात्रा की होगी, कभी कभी नदी का जल इतना शुद्ध होता है, समुद्र का जल इतना शुद्ध होता है, कभी सरोवर का इतना शुद्ध होता है कि नीचे वो स्पष्ट दिखता है। आपने वीडियो देखे होंगे, समुद्र में कितनी मछलियां अच्छी सुंदर दिखती है, कोई रत्न दिखते हैं, बिकॉज वाटर इज ट्रांसपेरेंट। दैट इज कॉल्ड स्वच्छता, दैट इज सात्विकता। ये पानी में जब रज होती है, धूल होती है, कचरा होता है, तो पानी कैसा हो, दिखाई नहीं पड़ता ठीक तरह से, तमस कहते हैं। और पानी यदि डिस्टर्ब है उसको रजस कहते हैं। तो पानी जब सब तरह से शुद्ध होता है तो क्या उसको प्रसन्न, क्या कहते हैं? प्रसन्न। ऐसा संस्कृत में स्वच्छ तो बोले, स्वच्छ भारत तो जानते हैं ना आप? स्वच्छ, स्वच्छ मीन्स व्हाट? क्लीन। When water is clean, you can see through it, isn't it? It's called transparent. कभी कभार मन ऐसा क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तभी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तभी हम क्या खुश हो जाते हैं। क्यों? जैसे जल के नीचे जो होता है वो हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है, वैसे हमारे मन के नीचे क्या है? हमारा आत्मा है, उसका हमको दर्शन होता है, तभी हम खुश हो जाते हैं। कब खुश हो जाते हैं, कब प्रसन्न हो जाते हैं? जब हमको अपने आप के दर्शन होते हैं, आपका अनुभव होता है। कभी कभी हमारा मन खुद शांत हो जाता है, तभी हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमको जो खुशी होती है वो कहां से आती है? हमको अपने आप की ही खुशी है, हम अपना अनुभव करते हैं। मतलब कि मन जब सात्विक होता है तब हम अपना अनुभव करते हैं, तब हम खुश हो जाते हैं। देखो ये बहुत महत्व की बात है। आप खुश कब होते हैं? जब आप अपना ही अनुभव कर रहे हैं। समझ में आया? वो क्या कब होता है? हमारा मन जब स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। वही कहा भगवान ने, देखो वर्स नंबर 6 पेज 182, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है, विकार रहित है, तभी सुख होता है, ज्ञान होता है। देखो आप सब विद्यार्थी हैं ना, विद्यार्थी किसको कहते हैं? जो विद्या का अर्थी होता है, जिसको ज्ञान चाहिए। यहाँ भगवान कहते हैं कि हमारे मन में ज्ञान कब उत्पन्न होता है? जब हमारा मन सात्विक होता है। सुख कब होता है? मन सात्विक होता है। ज्ञान कब होता है? मन सात्विक होता है। हम तो सुख बाहर खोजते हैं, वो 10th मैन की तरह। वास्तव में कहाँ है? अपने में। लेकिन उसका अनुभव कब होता है? जब हमारा मन स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है, तब हम अपना ही अनुभव करते हैं। तो क्या अनुभव होता है? हमको सुख का अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है। देखो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा रहस्य है, और आपको ठीक तरह से समझना है। ये बात जो हम कह रहे हैं ना, आप जितनी अच्छी तरह से समझेंगे उतना आपको जीवन में विवेक होगा, अच्छा मार्गदर्शन होगा
कि जीवन में जो सुख हम चाहते हैं, जो सक्सेस हम चाहते हैं, हम संपत्ति की बात नहीं करते हैं, धन की बात नहीं करते हैं, सत्ता की नहीं, हम क्या किसकी बात है, सुख की बात करते हैं। ये अलग चीज है। संपत्ति वहां है, सत्ता वहां है, प्रतिष्ठा बाहर है, वहां से प्राप्त करनी है, वो आप करें। लेकिन आपको सुख प्राप्त करना है तो कहां से प्राप्त करना है? अपने में से याद रखना। चलो आपके मन में बहुत एम्बिशंस है, अभिलाषा है, हमको धनवान बनना है, प्रतिष्ठित बनना है, सत्तावान, चलो बनो, वो बाहर से मिलेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? बेसिकली व्हाट यू वांट इज हैप्पीनेस। यू नेवर फॉरगेट दैट। I don't know happy for this. I don't know wealthy for the sake of wealth. I want to be happy. वो कहां से मिलेगा? वो तो अपने में से ही मिलेगा। कब मिलेगा? जब हमारा मन शुद्ध होगा, तब मिलेगा। इसलिए हमको सुख प्राप्त करना है तो क्या करना है? हमारे मन को सात्विक बनाना, स्वच्छ बनाना, निर्मल बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना। समझ में आया? हमको बनाना है, ऐसा नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। कभी होगा, हम प्रयत्न करेंगे। हमको शिल्पी बनना है और हमारे व्यक्ति को निर्माण करना है। हमारे अंदर जो ये सुंदरता है, सुख है, निर्मलता है, प्रसन्नता है, अब प्रेम की खोज बाहर करते हैं, वो कहाँ है? वो भी हमारा स्वरूप है। प्रेम, शांति, सुख, ये सबकी खोज हम बाहर करते हैं। वो कहाँ है? इसलिए 10th मैन, 10th मैन कहाँ है? जो गिनती करता है वही है। हम दुनिया से प्रेम की भीख मांगते हैं, हमको प्रेम कीजिए। हम दुनिया से सुख की भीख मांगते हैं, हमको सुख दीजिए, प्रेम दीजिए, हमारा स्वीकार कीजिए, हमको सम्मान दीजिए। दैट्स व्हाट वी वांट। We want others to make us happy, others to love us, others to respect us. But that is like what? Searching for the 10th man. जो हमारे में है उसकी हम भीख मांगते हैं, खोज बाहर से करते हैं। कैसे प्राप्त करना है? हमारे मन को सात्विक बनाना है, हमको करना है। कैसे होगा? वो रजस रजोगुण है, तमोगुण, उसको हटाना है। ये तीनों गुण है, हमको नहीं चाहिए, फिर भी ये सत्व रजस तमस तीनों गुण जो है वो हमारे व्यक्तित्व में आ गए हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। तो रजोगुण होगा तो क्या होता है? बात के श्लोक को पढ़ेंगे। 7th वर्ष, पेज 182। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नादि काउंतेय कर्म संगेन देहिनम। मिला आपको श्लोक? रजोगुण है तभी कामना उत्पन्न होती है, आसक्ति उत्पन्न होती है ना घड़िया बंजे। हाँ ये भी ठीक है। ये घड़ी बंद है, हमने सोचा बहुत समय है। क्या क्या होता है ना दुनिया में। लेकिन हमने सोचा ही नहीं कि घड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ती है। हम तो आपसे बात करने में इतने मशगूल हो गए हैं कि भी ये तो वही समय दिखाया करती है। हमने सोचा, हमने कुछ बात ही नहीं की, कोई क्या इतना ही वही समय रहता है।
तो यहाँ इस जो 7th वर्स है ना, सेवेंथ वर्स, उसमें भगवान कहते हैं कि जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है हमारे मन में, तब क्या होता है? डिजायर्स होती है। कामना का मतलब क्या है? डिजायर्स, एम्बिशंस, आक्रामकता, अग्रेसिवनेस, डिजायर्स, एम्बिशंस, अग्रेसिवनेस, एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस। मन में क्या होता है? अशांति। मन अशांत हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करूं वो करूं, एक के बाद कुछ प्रवृत्ति चलती रहती है। तो रजस से क्या होता है? प्रवृत्ति होती है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, बदलता ही रहता है। आपको अनुभव है उसका? उसका ही ज्यादा अनुभव होता है हमको। ज्यादातर किसका अनुभव होता है? रजोगुण का अनुभव होता है। हमको कितने एम्बिशन हो, ये करना है वो करना है, ये बनना है वो बनना है, ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए ये करना है, ये चाहिए उसके लिए ये करना है। तो desires will keep on arising, lot of activities will take place, mind will be not steady, mind will be restless. समझ में आया? At your age, वैसे हम सोचेंगे हमारे एज में नहीं होना चाहिए, सब एज में होता है, लेकिन at your age, what is the most predominant guna? Rajas. Desires, ambitions, activity, nothing wrong in it. हम नहीं कहते हैं कि इसमें कुछ बुरा है, लेकिन ऐसा है। क्या होता है? एक इच्छा उत्पन्न हुई, हमने कुछ किया, इच्छा पूर्ण हो गई। आपकी एक इच्छा पूर्ण होने पे क्या होता है? एक इच्छा पूर्ण हुई तो बस शांत हो जाता है, दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है ना। कुछ किया, वो पूरी हो गई, फिर हो गया शांत, नहीं, तीसरी इच्छा हो गई। मन कैसा है? एक इच्छा हो गई, पूर्ण हो गई, दूसरी इच्छा हुई, कुछ कर्म किया, वो पूर्ण की, इच्छा की परंपरा चलती रहती है, कर्म की परंपरा चलती रहती है, एक्टिविटी की परंपरा चलती रहती, मन में कभी शांति नहीं होती है। ये अवस्था क्या कहते हैं? रजोगुण कहते हैं। ये दुनिया में सबसे प्रेडोमिनेंट ये है सब जगह। और कभी कभी तमोगुण, इसके बाद का श्लोक पढ़ेंगे। तमस्त्वज्ञान विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। तमोगुण जब आता है तभी क्या होता है? मोह होता है, प्रमाद, आलस, लेजीनेस। माइंड बिकम्स लेजी, इनएक्टिव, नो इंस्पिरेशन, नो मोटिवेशन। कभी होता है चलो उठ भाई सुबह में कॉलेज में जाना है, नहीं जाना है। अरे अभी परसों एग्जाम है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं करना है। हमको पता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन मन होता ही नहीं है कभी। ऐसा क्या, इसको क्या है? तमोगुण का है। सो माइंड बिकम्स डल, डल। कुछ समझ में नहीं आया। अभी अभी यदि किसी में तमोगुण है तो क्या होता है? आप बैठे हैं, आप सुनते हैं, क्या होता है? नींद आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? निद्रा, आलस्य। इसका तो हमको बहुत परिचय है। ये स्वामी जी सब प्रवचन इतने बोरिंग होते हैं ना, क्या करेंगे। क्या कहेंगे? तमोगुण कहेंगे। नींद आ जाती है,
कुछ समझ में नहीं आते क्या कहता है स्वामी जी, क्या बोलते हैं। मन ऐसा हो जाता है ना, कुछ ग्रास्पिंग नहीं होता है। ये शब्द तो सुने पड़ते हैं लेकिन उसका क्या अर्थ है कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कोई इच्छा ही नहीं होगी बोलने तो हमको नहीं सुनना है, छोड़ो, नहीं सुनना है। कुछ रस नहीं है, क्या नहीं है, रस। हम क्या करना चाहें, जो जिसमें रस है वो करेंगे, इसमें रस नहीं है तो छोड़ देता है। वो नीरसता है, ये तमोगुण से क्या होता है, नीरसता होती है, आलस होती है, निद्रा होती है, प्रमाद होता है, निष्क्रियता होती है, कुछ उत्साह नहीं होता है। हाँ? ऐसा कभी अनुभव होता है, होगा, ज्यादातर नहीं, कभी कभी होता है। लोग शिक्षकों ने विद्या से ऐसे ही है, ऐसे हमेशा होता है, नहीं नहीं होता है लेकिन ऐसा हो जाता है। तो देखो हम आपको परिचय दें सत्व का, रजस का और तमस का। कभी कभी मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीजें बहुत अच्छी से समझ में आती है। ये ज्ञान प्राप्त करना है, समझना है, तो मन कैसे दे, सात्विक चाहिए। वृत्ति करनी है, मन कैसे दे, राजसिक चाहिए। और रेस्ट करना है तो कैसे चाहिए, तामसिक चाहिए। तो तीनों चाहिए हमको। सुबह में जब उठते हैं आप, तो ये आपको तो अच्छी नींद आती है, 7-8-10 घंटा सोता है ना, 7-8 घंटा सोता है ना, सोना ही चाहिए। तो सुबह उठने के बाद क्या है, ताजगी लगती है ना, फ्रेशनेस लगती है, नहीं लगती है? अरे तो स्लीप, नींद किसके लिए पता है आपको, फ्रेशनेस प्राप्त करने के लिए। विश्राम कहते हैं, विश्राम करने के लिए। सिर्फ शरीर को ही नहीं लेकिन फिर अपने मन को भी विश्राम के लिए नींद चाहिए। अभी स्वामी जी आपको क्या इतना स्ट्रेस है, नींद नहीं आती है? आती है लेकिन अच्छी तरह से नहीं आती है, इसलिए हमको उठते हैं लेकिन फिर भी हमको तो ऐसा आलस ही लगती है, फ्रेशनेस नहीं लगती है। लेकिन नींद का क्या प्रयोजन है, विश्राम करना। शरीर को विश्राम मिलता है, मन को विश्राम मिलता है, तो मन को ताजगी मिलती है, फ्रेशनेस मिलती है। ये होना चाहिए। सारा दिन हम श्रम करेंगे, रात को विश्राम करेंगे, समझ में आया, श्रम और विश्राम दो का बैलेंस होना जीवन में, दो का बैलेंस होना चाहिए, श्रम और विश्राम। आप श्रम ही करते रहेंगे, श्रम करते रहेंगे, थक जाएंगे, शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी। बैटरी चार्ज कर दी है ना, बैटरी का उपयोग किया ही करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगी ना, बैटरी को चार्ज कर दिया है। तो नींद किसके लिए है, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अच्छी नींद के बाद सुबह में हमको ताजगी का अनुभव होता है, स्वस्थता का अनुभव होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है। ऐसा होना चाहिए भाई। आपने ऐसा सुना है, ब्राह्म मुहूर्त है, सुना है कभी आपके? कहते हैं कि यदि आपको भगवान का ध्यान करना है, कुछ करना है, तो पहली सुबह में उठ जाना चाहिए। क्यों? तभी मन प्रसन्न होता है, ऐसा ऐसा मानते हैं। कब होता है? हमको अच्छी नींद आती है तभी। नींद है वो तमस है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे शरीर को, मन को विश्राम मिलता है, अपना शरीर फ्रेश हो जाता है, मन फ्रेश हो। इसलिए मॉर्निंग में सत्व गुण होता है। जब हम उठते हैं ना, सत्व गुण का प्रधानता होती है। इसलिए ध्यान करने के लिए, योगासन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कौन सा समय है? सुबह में समय है।
क्योंकि इससे अपेक्षा है कि हमको रात में अच्छी नींद आई थी, इसलिए मन हमारा फ्रेश है, सात्विक है। सात्विक मन जो है वो अभ्यास के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रार्थना के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए अच्छा है। ये सूरज बढ़ता है ना, प्रवृत्ति बढ़ती है, क्या बढ़ता है? रजोगुण बढ़ता है। इसलिए हम काम रात को नहीं करें। काम कब करते हैं? कब जाएंगे काम के लिए? दिन भर, दिन में जाएंगे। हिंदुस्तान में तो लोग 11 बजे जाते हैं ना ऑफिस में। ये तो कोई काम करने का समय हमको नहीं कहना है, लेकिन देखो विदेश में, जैसे अमेरिका वगैरह देश में, तो सुबह में 7 बजे शुरू हो जाएगा, सुबह में। तभी हमका फ्रेश है, एनर्जी है। चलो 9 बजे तो होगा ही होगा। बड़े शहर में 9 to 5, अदरवाइज 8 to 4, क्या 8 o'clock। So that's the time to work। फिर धीरे 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 सूरज जाता है तो तमोगुण आता है। सूर्योदय के पहले सत्वगुण, सूर्य से बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, कर्म बढ़ता है, प्रवृत्ति बढ़ती है, और सूर्यास्त के बाद तमोगुण आता है। नींद का समय है, विश्राम का समय, ऐसी व्यवस्था है। हम तो ऐसा नहीं करते, हमको रात को ही सब करते हैं आजकल, वो अलग बात है। लेकिन कुदरत ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की है। अभी मुंबई में तो बहुत कठिन है, लेकिन पहले वो देहात में, विलेज में क्या है, लोग सूरज उठेगा, वो उदय हो, वो उठ जाएंगे, सूर्यास्त से सो जाएंगे। हम आप ऐसा करने की कहने, लेकिन ऐसा था जीवन पहले। तो चलो, सुबह सत्व, रजस, रात को तमस, ऐसा क्रम हमारे मन में, जीवन में है। सत्व, रजस, तमस, इस ऐसा हमारा मन जो है ये 3 गुणों का मिश्रण है। कभी सत्व की प्रधानता होती है, हमको प्रसन्नता लगती है, हमको उत्साह होता है। कभी रजोगुणी प्रधानता होती है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, एम्बिशंस होती है, डिजायर्स होती है, एक्टिव, वो भी जरूरी है। तमोगुण है, कभी नींद आती है, आलस आती है, कुछ इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, तमोगुण। तो सत्व, रजस और तमस हमारे व्यक्तित्व को समझना है। तो मूल्य क्या है? हमारे व्यक्तित्व को सात्विक बनाना, ये हमारा मूल्य है। कहाँ है? मूल्यनिष्ठ है जीवन। जीवन में क्या मूल्य है? हमारे मन को सात्विक बनाना, निर्मल बनाना, प्रसन्न बनाना, तो हमको सुख का अनुभव होता है। हमारी क्रिएटिविटी, आवर नॉलेज, आवर क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन सब कब होता है? जब मन सात्विक होता है तभी। ये बड़े बड़े कवि होते हैं, लेखक होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, लोग सर्जन करते हैं, कब होता है? मन जब भी सात्विक होता है तभी। बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े कवि होते हैं, बड़े बड़े लेखक होते हैं, जो सर्जन होता है कब होता है? मन की सात्विक अवस्था में। हमारा अभी ज्ञान कब होगा, समझ में कब आएगा? जितने उसमें मन सात्विक है, उतने उसमें हमको ज्यादा समझ में आता है। तो ग्रास्पिंग इज बेटर। हम सुनते हैं ना, पहले समझना है, ग्रास्प करना है, समझ कुछ याद नहीं रहता है। ये पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। ऐसा होता है? हाँ, बहुत होता है। स्वामी ये ज्योग्राफी में क्या मजा आता है, ये ज्योमेट्री में क्या मजा आएगा, ये क्या मजा आएगा, तो वो विषय में मजा नहीं आता है। ये कॉमर्स में क्या मजा आएगा, हमको पता नहीं है। आपको कॉमर्स पढ़ते हैं तो मजा आता होगा, लेकिन हम तो वही साइंस के विद्यार्थी थे, इसलिए वो तो सब छोड़ दिया। लेकिन
कभी ऐसे विषय होते हैं ना, हमको कुछ आनंद नहीं आता है, क्योंकि सत्व गुण नहीं है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो क्या करना चाहिए हमको? स्वामी जी, सात्विक बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम कहेंगे तो ये भगवत गीता के यही विषय है। भगवान ने कार्यक्रम बनाया, दिखाया है, किसमें? समझा है भगवत गीता में। एक कार्यक्रम हमको दिया है, हमारे व्यक्तित्व में कैसे धीरे धीरे परिवर्तन करना, तमोगुण से मुक्त होकर रजोगुण लाना, रजोगुण से मुक्त होकर सात्विक बनना। और फिर बहुत बड़ी बात है, ये भी भगवान ने की है, वो हम करेंगे। सत्व से भी अतीत हो जाना वो तो बहुत दूर की बात है। हमको क्या करना है? पहले रजोगुण और सत्वगुण। तो अभी हम विश्राम लेंगे, 7 बजे हैं, बराबर ठीक है ना? 7 बजे उठ ही गए, अभी हमने बंद नहीं किया है, देखो दे आर ऑलरेडी आउट। इसको रजस, क्योंकि सुनते सुनते इतने बोर हो गए थे। अच्छा, बाथरूम में जाना है इसलिए भागते हैं? ठीक है। ऑल राइट, ओके, ठीक है, आप सब जा सकते हैं और 10 मिनट में वापस आएंगे। अच्छा अच्छा, जाइए। Students, we shall resume after the break of 10 minutes. Later. शायद सॉरी, ऑन कर। ओ ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सत्व, रजस और तमस, भगवान ने कहा तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्व गुण का अर्थ निर्मलता है, प्रकाश है, प्रसन्नता है। मन जब निर्मल होता है, प्रकाश में होता है, प्रसन्न होता है,
उसको सात्विक अवस्था कहते हैं। जब उनमें राग होते हैं, द्वेष होते हैं, इच्छाएं होती है, प्रवृत्ति होती है, अशांति होती है, उस अवस्था को रजस कहते हैं। आलस होती है, प्रमाद होता है, निष्क्रियता होती है, उस अवस्था को तमस कहते हैं। ये तीनों हमारे मन में है। किसी किसी व्यक्तित्व में सत्व की प्रधानता हो तो सात्विक व्यक्ति कहते हैं, किसी में रजोगुण की प्रधानता हो तो उसे राजसिक व्यक्ति कहेंगे, किसी में तमोगुण की प्रधानता हो तो तामसिक व्यक्ति कहेंगे। तो भगवत गीता में भगवान एक कार्य के प्रोग्राम देते हैं, कैसे हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन करना, तमोगुण में से रजोगुण और रजोगुण में से सत्व। अभी आपने भगवत गीता का श्रवण किया, आपने सुना होगा कि पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों में अर्जुन ने कहा, नयोत्से भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन निष्क्रिय होगा। क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। अर्जुन तो योद्धा है, उसके शस्त्र अस्त्र है, धनुष्य बाण तो उसके अस्त्र है। वो यदि धनुष्य धारण करता है, उस बाण का प्रयोग, तभी वो क्षत्रिय है, शक्तिशाली है, अपना कर्म करता है। तो अर्जुन जैसे क्षत्रिय को अपना कर्म करने का साधन है धनुष्य बाण, ठीक है ना। आपका है दूसरा होगा, किसका कलम होगी, किसका छीनी हथौड़ी होगी, किसका ड्राइंग होगा, किसका कंप्यूटर होगा। ऐसे साधन से हम हमारे कर्म करते हैं। तो पहले अध्याय में अंतिम श्लोक में क्या कहा? विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। अर्जुन शोक मग्न हो गया, विषाद में डूब गया, उसने अपने धनुष्य बाण का त्याग कर दिया। ऐसा पहले अध्याय के अंत में आया। हम कहेंगे तामसिक अवस्था। क्या कहेंगे? तामसिक अवस्था। तो कुछ मोटिवेशन नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, प्रेरणा नहीं होती है। अर्जुन में से उत्साह निकल चला गया, प्रेरणा सब चली गई। बहुत बड़ा योद्धा है और कितने समय से ये युद्ध करने की सब योजना कर रहे थे ये लोग। वो रण मैदान में आया, बहुत उत्साह पूर्वक आया, भगवान को कहता है, भगवान हमारे रथ को आप 2 सैन्य के बीच में स्थापित कीजिए, जिससे हम दोनों सैन्य का निरीक्षण कर सकते हैं। भगवान उसका रथ 2 सैन्य के बीच में लेके आए। तभी अर्जुन ने देखा कि ये तो हमारे सब संबंधी है, मित्र है, स्वजन है, और उनके मृत्यु की कल्पना से उसका सब उत्साह चला गया, सब मोटिवेशन चला गया, उत्साह चला गया, शक्ति चली गई। वो भगवान को कहते, भगवान हमारा धनुष्य भी हम नहीं पकड़ सकते, वो भी हमारे हाथ में से निकल रहा है, हम खड़े भी नहीं रह सकते हैं। वो बैठ गया रथ के मध्य में। निष्क्रियता, तमोगुण। तो तमोगुण आता है तो निष्क्रिय हो जाते हैं, अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, जो करना है छोड़ देते हैं। इस परिस्थिति में अर्जुन का क्या कर्तव्य है? युद्ध करना।
कोई कहेंगे आप में से हमको अर्जुन को क्यों युद्ध करना है? तो लड़ाई जीतने के लिए नहीं, राज्य पाने के लिए नहीं, धर्म का रक्षण करने के लिए। किसके लिए? अर्जुन क्या करता है? अर्जुन धर्म का पक्ष है, अर्जुन का पक्ष धर्म का है। वो यहां धर्म की रक्षा के लिए आया है। दुर्योधन जो है वो अधर्म का नेता है। तो दुर्योधन जिसका नेता है, ये जो कौरव सेना है वो अधर्म, और युधिष्ठिर जिसके नेता है पांडव सेना, वो धर्म का अभिव्यक्ति है। ये धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। अर्जुन का क्या कर्तव्य? धर्म का रक्षण करना। लेकिन उसने तो हथियार छोड़ दिया, निष्क्रिय हो गया। तो निष्क्रियता में से सक्रिय कैसे बनाने का, उसको कहते हैं भगवान। ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। ये अर्जुन, तुम नियत कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, आप कुटुंब में हैं, माता है, माता पिता है, भाई बहन होंगे, परिवार होगा। यदि आप ऐसे परिवार में, कुटुंब में रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? हमको भी कुछ हाथ देना है ना। हम खाते हैं, पीते हैं, तो उसके बदले में हमको भी कुछ प्रदान करना चाहिए। जगत में नियम है। भगवान ने तीसरे अध्याय में ऐसा ध्यान खींचा। देखो अर्जुन, जगत के सारे तत्व अपना अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, अपना प्रदान करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। यू नो कंट्रीब्यूशन, जैसे हमारी देह है, भिन्न भिन्न अंग है, हाथ है, पांव है, मस्तक है, आंख है, नाक है, कान। ये प्रत्येक अंग अपना अपना काम करता है। ये किसके लिए? शरीर का संचालन करने में, शरीर की रक्षा करने में, वरना ये शरीर नहीं चलेगा। प्रत्येक सेल जो होते, कोष, वो भी अपना काम करता है। तो देखो, हमारे शरीर में एक सामूहिक यज्ञ चल रहा है। ये प्रत्येक कोष जो है, प्रत्येक अंग है, वो सब अपना अपना कर्म करते हैं और शरीर के संचालन में, रक्षा में, सुख में अपना प्रदान करते हैं। ठीक है ना? वैसे हम कुदरत में देखेंगे तो कुदरत का प्रत्येक तत्व भी अपना अपना कर्म का, सूर्य भी अपना कर्म करता है, प्रकाश देता है, अग्नि कर्म करता है, उष्णता प्रदान करता है, पृथ्वी कर्म करती है, सबको धारण करती है, जल कर्म करता है, सबकी तृषा छिपाता है। प्रत्येक एटम काम कर रहा है, प्रत्येक मॉलिक्यूल, सब कुछ, कोई, अब सब लोग एक्टिव है, प्रवृत्त, अपना अपना कर्तव्य करते हैं, अपना अपना प्रदान करते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग। यू फॉलो? निष्क्रियता जगत में कहां भी नहीं है, कहां भी निष्क्रियता। ये टेबल निष्क्रिय दिखता है, उसमें बहुत मॉलिक्यूल है, एटम्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल बहुत एक्टिव है। जगत में एवरीथिंग इज एक्टिव, एवरीथिंग इज मूविंग एंड एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग। यू नो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? अपना अपना प्रदान करते हैं। Sun also contributes by giving light and energy.
Earth contributes by giving food, sustaining everybody. Water contributes by quenching thirst of all living beings. Every atom, every molecule, everything in the universe is active, and not only active, but then supporting the whole scheme of the universe. ठीक है ना? वृक्ष भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, सब कुछ अपना कर्म करता है। देयर इज अ हार्मनी। कैसा क्या है? इकोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता है ना? इकोलॉजिकल ऑर्डर कहेंगे, हार्मनी कहेंगे, संवादिता कहेंगे, लॉ कहेंगे, सब जगह है ना प्रवर्तमान। तो उसमें कोई अपवाद नहीं है। दुनिया में कोई नहीं कहता अरे हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कोई है ही नहीं। सब लोग अपना अपना कर्तव्य करते हैं। प्रत्येक चेतन अचेतन जगत में जो कुछ है भगवान ने रचा है वो अपना कर्तव्य करता है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द स्कीम ऑफ थिंग्स। जैसे मशीन चलता है, सब पार्ट्स जो है अपना अपना कर्म करते हैं, तभी सारा मशीन चलता है ना। ये जगत का यंत्र चलता है, उसमें हम सब क्या है? उसके कंपोनेंट है। यू नो कंपोनेंट, पार्ट, अंग, अवयव। जैसे हमारे सब अवयव अपना अपना कर्म करते हैं तभी ये शरीर चलता है, संवादिता हो रही। वैसे जगत में भी ऐसी संवादिता है। There is a harmony. Every entity in the universe is providing its own contribution. Nothing is lazy, nothing is inactive, everything is active. Supportingly, creatively acting. आप देखना, ठीक है ना? ऐसा है कुछ जगत में जो कुछ नहीं करता है? ऐसा दिखता है वो भी बैठे बैठे कुछ करता है। प्रत्येक चीज कुछ न कुछ करती है जिससे जगत का चक्र चलता रहे। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम और बहुत महत्व की बात। तो देखो भाई, हम जगत के अंश है कि नहीं है? सूर्य है, चंद्र है, ये टेबल है, चैन, जो भी है वो जगत के अवयव है। हम भी ऐसे है कि नहीं? तो हमको भी करना चाहिए कि नहीं? दूसरा क्या है पता है? देखो अपनी ये वैदिक संस्कृति कैसी बढ़िया है। उपनिषद कहते हैं कि जगत का प्रत्येक जो तत्व है, एलिमेंट, वो उपकार्य उपकार का, एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स एंड एवरीथिंग रिसीव्स कंट्रीब्यूशन। ऐसे उसको सिम्बायोटिक, कभी शब्द सुना है सिम्बायोटिक? ऐसा शब्द सुना है? नहीं सुना होगा। जैसे वृक्ष और अपने बीच में संबंध क्या है? सिम्बायोटिक। हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वृक्ष वो अब्सॉर्ब करता है, वो ऑक्सीजन देता है हमारे लिए। समझ में आया ना? हम उसको देते हैं, वो हमको, इसको क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। म्यूचुअल हेल्पिंग, म्यूचुअली सपोर्टिंग, परस्पर प्रदान करना, परस्पर सपोर्ट करना। समझ में आया? भगवान ने जगत की ऐसी रचना की है कि प्रत्येक जड़ है, चेतन है, जो भी है वो अपना अपना कर्म करता है, जगत के संचालन में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। समझ में आया? अपने देह में प्रत्येक कोष जैसे कंट्रीब्यूट करता है, वैसे ऐसी ही रचना है। हम भी जगत में कोष के समान है, एक अवयव, हमको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन हम में और कुदरत में एक तफावत है। कुदरत के जितने भी अंश हैं ना, जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो भी है, ये सब लोग भगवान ने ऐसी रचना के वो अपने आप सब कंट्रीब्यूट करते ही रहते हैं। अभी आपने इतना साइंस तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे तो इतनी बहुत बढ़िया
देयर इज एनवायरमेंटल जो बैलेंस है। आप जंगल में जाएंगे, वृक्ष है, वो वृक्ष कैसे कंट्रीब्यूट, जीवंत है तभी वृक्ष का व्हेन इट फॉल्स डाउन देन आल्सो, ये क्या क्या कितना कितना जीव का सपोर्ट करता है। तो वो तो अपने आप ही करते हैं, भगवान ने उनको ऐसे बनाए, लेकिन ये मनुष्य अलग चीज है। हमारे में और जगत के दूसरे क्या तफावत है? वी हैव ए फ्री विल। हैव यू हर्ड दिस वर्ड फ्री विल expression? Free will? What is free will? Freedom to do or not to do. Suppose I invite you, चलो सब तालियां बजाएं। थैंक यू। भाई तो बहुत ओबीडियंट लोग हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चे हैं। बाकी दूसरों को धमके हैं तो कुछ वो बैठे जाएंगे, देखते रहेंगे, स्माइल देते रहेंगे, वो दो चार लोग ताली बजाएंगे, ज्यादा नहीं बजाएंगे। ऐसा क्यों? हम भी क्या तालियां बजाए? किसी को बजाना है तो बजाए, क्यों? बिकॉज यू फ्री विल। ताली नहीं बजाने की फ्रीडम हमको है। ये बल्ब है ना, उसकी स्विच होती है ना, हम स्विच दबाएंगे तो बल्ब विल स्टार्ट शाइनिंग, ग्लोइंग। बल्ब को स्वतंत्रता है। फैन स्विच ऑन करेंगे चलेगा, स्वतंत्रता है नहीं। लेकिन हमको स्विच ऑन करेंगे, कुछ नहीं करने की हमको स्वतंत्रता है। समझ में आए? The world know nothing as a freedom not to contribute, they will automatically do. But human being has freedom not to contribute, take all advantage and not give anything back. लोग कहते हैं ना कभी कभी सब लाभ लेते हैं, कुछ नहीं देते हैं। ऐसा है मनुष्य, उसकी क्या टेंडेंसी है? सब लाभ लेना। लेकिन ज्यादातर लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते। तो टैक्स आता है, टैक्स इधर नहीं। यार कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो भी क्या करेंगे? टैक्स प्लानिंग करेंगे। वो क्या टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स चीटिंग क्या है? आप प्लानिंग ऐसा शब्द तो कहते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कैसे कम टैक्स देना, ऐसा है ना। आपके क्लाइंट जो होते हैं उसको कैसे कम टैक्स देना। क्यों? टैक्स क्या चीज है आप जानते हैं? हमको जो भी आमदनी होती है उसका एक अंश हमको देना चाहिए, समष्टि को हम नहीं देना चाहते हैं। So this is our tendency. We want all the advantage and don't want to return the favor. समझ में आया ना? ये मनुष्य ऐसा है, वो लोभी है। कैसा है? लोभी है। वो सब चाहता है, कुछ देना नहीं चाहता। सब मांगता है, कुछ देना नहीं चाहता। दुनिया में कहीं लोभ नहीं है। सब लोग जो मिलता है वो बांटते भी है। हम सब लेते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं। हमको क्या लगता है? हम धनवान हो जाएंगे हम। लेकिन तकलीफ क्या है? ऐसा करने से धन तो मिलता है, सुख नहीं मिलता है। समझ में आया? सुख कब मिलेगा? जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे तभी, हमारा शेयर देंगे तभी। उसको भगवान यज्ञ कहते हैं। जगत में जब जो सब जो एलिमेंट है वो सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। भगवान का हे अर्जुन तुम भी ऐसा करो। अर्जुन तो बैठ गया, नहीं करेंगे। अरे भी देखो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो कुछ नहीं करता। निष्क्रियता कहाँ है? ही नहीं। तुम निष्क्रिय हो गए वो तो अलग बात। मतलब आप तो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। आप तो जगत के कायदे में, लॉ में, हार्मनी में ज्वाइन होना नहीं चाहते हैं। आप तो ड्रॉप आउट हो जाना। हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम सब लाभ लेंगे, लेकिन हम कुछ उसका बदला नहीं देंगे। ऐसा होता है ना मनुष्य में, ऐसी टेंडेंसी सब में है। उसको कहते हैं रजोगुण। क्या कहते हैं? जब रजोगुण होता है तभी हम सब चाहते हैं, लेकिन हम वापस देना नहीं चाहते हैं।
लोभ होता है, हम चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये सब क्या होता है? इज ऑल लॉस ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ रजोगुण। तो इसमें कहा क्या है भाई? वैल्यू एडेड, मतलब व्हाट इज पर्पस ऑफ वैल्यू? जिससे रजोगुण कंट्रोल में आएगा और सत्व गुण को पोषण मिलेगा। कहते प्रामाणिक बनिए, आप परिश्रम कीजिए, ऑनेस्ट बनिए, ट्रूथफुल बनिए, ऐसा क्यों कहते हैं? जिससे हमारे में जो सत्व गुण है उसका विकास होगा और ये रजोगुण धीरे धीरे क्षीण होगा। लेकिन भगवान कहते हैं, आपने कर्मयोग तो सुना ना भी इतने दिन, कर्मयोग क्या चीज है? क्या चीज है? कर्म तो एक है, उसमें योग है, कर्म है और योग है, दो वर्ड है ना, दो शब्द है ना। कर्म क्या चीज है? आप जो करते हैं रोज बरोज उसको कर्म कहेंगे। योग किसको कहें पता है आपको? जो भी छोटा बड़ा कर्म आप करते हैं उसको which attitude, which value, what's the value? My action should become a means of contribution. ऐसे एक चींटी भी होती है, तो सब जीव कुछ कुछ करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें जो भी हम करते हैं छोटा बड़ा, उसके पीछे स्पिरिट क्या होना चाहिए? क्या स्पिरिट होना चाहिए? क्या वैल्यू होनी चाहिए? हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट? स्वयं हमको क्या लाभ मिलेगा? ये लाभ तो एक मनुष्य ही खोजता है, हमको क्या मिलेगा? अर्जुन को भी समझ में नहीं है हमको क्या मिलेगा। आप कहते हैं आप निष्काम कर्म कीजिए, कोई कामना के बिना कर्म कीजिए, आप दूसरे के ऊपर उपकार कीजिए, दूसरों को लाभ दीजिए, हमको क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ? आप परिश्रम करेंगे उसकी सेवा में, उसके उपकार, आपको मिलेगा कुछ? यदि कोई बीमार है उसकी सेवा आप करते हैं, यदि कोई भूखा है उसको आप कुछ भोजन देते हैं, कभी तरस लगी है आप पानी देंगे, कुछ आपको मिलेगा उसमें? मिलेगा? आप चलते हैं, कोई गिर गया, आप हाथ उठा के उसको दे के उठा होते हैं, आपको कुछ मिलता है? नहीं मिलता है ना। कोई 1 रुपया देता नहीं देता है, कुछ नहीं मिलता है ना। आप किसी को मदद करेंगे, किसी के उपयोगी बनेंगे, किसी की सेवा, कुछ किया है आपने घर में? कभी मम्मी को मदद की है? छोटे भाई को, छोटी बहन को, मम्मी को, मित्र, कुछ मदद करते हैं आप? क्या शायद सेवा ही लेते हैं, खाते ही हैं? मम्मी हमको ये चाहिए वो चाहिए, सब चाहिए तो सही, लेकिन कुछ आप करते हैं? यदि किसी को जरूरत है और आप कुछ करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा? स्वामी कोई कुछ नहीं देता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर कुछ मिलता है? कोई मिलना चाहिए, क्या मिले? संतोष मिलना चाहिए। किसी को जरूरत है, आप अपना हाथ बटाते हैं, आप उसको मदद करते हैं, यू आर हेल्पिंग समबडी, व्हाट डू यू गेट? यू गेट इनर सेटिस्फैक्शन। पता है आपको? कभी किया है? आप करना। इसको कहें इंग्लिश में क्या कहें? एक्ट ऑफ काइंडनेस। क्या कहेंगे? वन एक्ट ऑफ काइंडनेस आप करना, क्या होता है? इनर सेटिस्फैक्शन। क्या होता है? आपको कुछ मिलता है? क्या नहीं मिलता है? रुपया आना नहीं मिलता है तो क्या मिलता है? इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सत्व मिलता है। आप करते हैं, रजस देते हैं, क्या मिलता है? सत्व मिलता है। समझ में आया? हमको क्या इकट्ठा करना है जीवन में? आप धन क्या इकट्ठा करें? सत्व इकट्ठा करना है। क्यों? उसमें सुख मिलता है। तो अपने जीवन में सत्व को कैसे इकट्ठा करना, उसका सरल कार्यक्रम भगवान ने दिया, उसको कर्म योग कहा।
आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी छोटी बड़ी चीज करते हैं, अरे मित्र के साथ बात भी करना, वो भी कर्म है। उसमें आप कुछ दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आपका प्रेम दे सकते हैं, कुछ सम्मान दे सकते हैं, अपने वर्तन से दूसरों का सम्मान कर सकते हैं, उनको प्रेम कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं क्या नहीं? ये करने की अपॉर्चुनिटी आपको एवरी मोमेंट है। एवरी मोमेंट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी काइंड पर्सन, टू बी ए गुड पर्सन, टू बी ए गिविंग पर्सन. You don't need money for that. You don't have to buy anything for that. You have enough of it inside you. Enough kindness is there. Enough goodness is there. आप देंगे तभी मिलेगा. ये चीज कैसे? देने से मिलती है. आपने सुभाषित सुना पढ़ा है ना कि ज्ञान देने से जा बढ़ता है, ऐसे ही काइंडनेस देने से बढ़ती है. हैप्पीनेस लेने की चीज नहीं, हैप्पीनेस देने से मिलती है. प्रेम देने से मिलता है. आप ये समझ लेना. जीवन में हैप्पीनेस चाहिए तो यू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल गेट हैप्पीनेस. यू वांट लव, गिव लव टू समबडी, इट विल रिटर्न टू यू. आपको यू नो एको इफेक्ट. पहाड़ में जाके बोलते हैं राम राम, तो पहाड़ बोलते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? घोष कह रहे हैं, प्रतिघोष. वैसे ही है जीवन में. आप प्रेम देंगे तो क्या मिलेगा, और आप द्वेष देंगे तो क्या मिलेगा. बस नक्की तय करना है क्या करना है हमको. ये भगवान सरल चीज सिखाते हैं कि आप जब सुबह से शाम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो भी करते हैं, you make your life an opportunity to make others happy, give comfort to somebody, kindness to somebody, goodness to somebody. क्या मिलेगा? अंदर काइंडनेस मिलेगी, गुडनेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा. इसको कर्मयोग कहते हैं. ऐसी भावना से कर्म करना, कुछ भी काम करेंगे, इमीडिएट रिवॉर्ड क्या है? Inner happiness. This is how we transform rajas to sattva. हमको कुछ करना नहीं है, उसके जो करते हैं उसके पीछे भावना ही करनी है कि हम कैसे उपयोगी बने. जगत में सब परोपकार चल रहा है. आपने सुना है सुभाषित, परोपकाराय विभाग सूर्य. सुना है कि सूरज देवता है, प्रकाश आप देते हैं, कुछ मांगते हैं? Does sun demand anything? परोपकाराय. नदी जल देती है ना, परोपकाराय वहन्ति नद्यः. ये वृक्ष फल देते हैं, कुछ मांगते हैं? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः दुहन्ति गावः. देखो सभी कुदरत ऐसी है, सब लोग परोपकार करते हैं. सब जगह निष्कामता है, कोई कुछ मांगता नहीं है. एक मनुष्य जैसा वो मांगता है, क्योंकि उसके अंदर ये तमस भरा है, रजस भरा है. इसलिए भगवान कहते हैं आपकी ये जीवन की जो रीति है, नियत है, ऐसा जीवन आप जिए तो धीरे धीरे आप में भी ये सत्व गुण आएगा, सुख आएगा, संतोष आएगा. एक कर्मयोग यानी कार्यक्रम है. क्या कार्यक्रम है? रजस में से धीरे धीरे कैसे मन में सत्व में परिवर्तन करना. कुछ अलग चीज नहीं करनी है, सिर्फ कर्म. कुछ करते वक्त मन में सोचना, हम बात कर रहे हैं, हमारी बात से वो खुश कैसे होगा. जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई भी व्यवहार कर रहे हैं, उसमें हम कैसे उसको उपयोगी हो सके, कैसे उसको खुश कर सके.
कैसे हमारी काइंडनेस दे सके, कैसे काइंडनेस एक्सप्रेस कर सके, ये प्रयत्न करना। इससे हम हमारे अंतर में परिवर्तन लाते हैं, सत्व गुण का बढ़ावा करते हैं। तो क्या होती है? प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, सक्सेस मिलती है। तो ये कार्यक्रम भगवान देते हैं। देखो चलो, ये तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा इसमें। एक 183 पेज है, उसमें 9th वर्ष है। अच्छा, चौपड़ी है 183 पेज, 9th वर्ष, ये पुस्तक में। उसमें कहा सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृतु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्व गुण जो है वो सुख उत्पन्न करता है, रजोगुण है वो अशांति उत्पन्न करता है, तमोगुण जो है वो आलस निद्रा उत्पन्न करता है। आप 11 सी वर्स नंबर 11 ऑन सेम पेज 183। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विरुद्धम सत्वमित्युत। हमारी इंद्रिया, हमारा मन, वो सब कुछ रिसेप्टिव हो जाते हैं। जो सुनते हैं उसका अर्थ समझ में आता है, जो देखते हैं उसका आनंद ले सकते हैं। हम जब घूमने जाते हैं ना, आस पास वृक्ष होती है, वनस्पति होती है, वृक्ष होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, हम तो चलते जाते हैं। लेकिन सत्व होगा तो सब इसका आनंद ले पाएंगे। आप समझे? If your mind is sattvic, you will enjoy what is there. You will enjoy the trees, you will enjoy the birds, you will enjoy animals, you will enjoy sky, you will enjoy nature, enjoy life as it is. You don't need this पिज्जा पिज्जा की जरूरत नहीं है। अभी तो हमको पिज्जा मिलेगा, मूवीज मिलेगा, ये मिला, चलो अच्छी बात। लेकिन यदि मन सात्विक है तो जो है उसका आनंद ले पाएंगे। सरद्वारेषु, आंख से देखेंगे तो उसका आनंद लेंगे, कान से सुनेंगे, जो इंद्रियों से सब मिलता है कुदरत में से सबका आनंद मिलता है, सात्विक। उसके बाद 184 पेज पर 12th वर्ष। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामश्मस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, अशांति, विषय भोग में लालसा, ये क्या होता है? रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और तमस से क्या होता है? नेक्स्ट वर्ष, अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण, मन और इंद्रियों में अप्रकाश, कुछ ज्ञान, कुछ समझ में नहीं आता है, निष्क्रियता आ जाती है, निद्रा आ जाती है। ये सब तमोगुण में होता है। तो ये भगवान यहाँ अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। तो कैसे धीरे 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 तमोगुण में से रजोगुण और रजोगुण सत्व गुण का कैसे बढ़ावा करे, इसके उस प्रयोजन से ये सब भगवान कहते हैं। On page 185, see verse number 17. सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसः भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न, तभी आपको ज्ञान सत्व गुण से जो होता है, मन में समझ में आता है, ज्ञान आता है, हमको सब स्मृति रहती है, ग्रास्पिंग होता है, रिमेम्बरेंस होता है, मेमोरी होती है।
और ज्ञान का आनंद होता है सत्वगुण। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ होता है और तमोगुण से प्रमाद होता है। इस प्रकार ये अध्याय में भगवान ये तीन गुणों का, हमारे मन का, हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं और कैसे हमको हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना है उसका परिचय। फिर आगे बहुत बात करते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। ये तीन गुणों की बात क्यों कही? तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए, वो तो कभी होगा, उसको गुणातीत कहते हैं, वो तो हमसे बहुत दूर है। अभी हमको क्या करना है? हमको समझना है अपने मन को और धीरे धीरे परिवर्तन लाना है। कैसे आएगा? हमारे कर्म में जैसे जैसे काइंडनेस आएगी, जनरॉसिटी आएगी, हेल्पफुलनेस आएगी, परोपकार आएगा, ऐसे मूल्य आएंगे तो धीरे 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 हमारे मन में परिवर्तन आएगा। चलो, हमने बहुत बात की आज। हम चाहते थे कि कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए होना चाहिए। यहाँ की रीत यह है कि स्वामी जी वो लोग आपको आके पूछेंगे, ऐसा नहीं। आप जहां बैठे वहां से, आपके पास कुछ कोडलेस माइक्रोफोन है? हाँ, सो व्हाई नॉट वी इनवाइट सम क्वेश्चंस फ्रॉम देम। Students who all have any question, they can raise their hands. The volunteer will get the cordless mic to them. Start Anyone who with wants to one, ask? then slowly other people will have courage. अभी सबको कहता हूं, but if somebody starts asking, Anyone has question? lots of people, lots of questions, but if you ask, then he will ask. ऐसा है, संकोच होता है। हम पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, स्वामी को कैसे लगेगा। Swamiji, generally this crowd is very inquisitive. They are always filled with a lot of questions. But I think the way you explained today with such a simplicity, connecting to their normal life, I think the things are pretty clear today. But I still want questions anyway. क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको। सवाल पूछने के लिए सात्विक गुण का बढ़ना जरूरी है, तो सात्विक गुण का बढ़ाना जरूरी है। तो कुछ भी हो, सबका प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए। संकोच वो तमस है। देखो, प्रश्न पूछेंगे तो सत्वगुण बढ़ेगा, ऐसा कहा उन्होंने। प्रश्न पूछेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, तो पूछिए भाई, तो सत्वगुण बढ़ेगा। चलिए, मैं ये पुस्तक आपको बता रहा हूं जो स्वामी जी ने लिखा हुआ है, मैनेजमेंट विजडम फ्रॉम भगवद गीता। नाउ दिस हैज very important chapters which will be useful. Success, the value of values, managing relationships, emotional maturity, becoming a contributor, stress management, the human personality, leadership and self-management. As I like this book and I'm sure that this will be of use to you. The cost of this book is 125. But Swamiji has said, and on the behalf of management, we will subsidize book for you at 50 rupees only. And this book, I'm ordering 200 books of this because I'm sure that this will change your personality from Tamas to Sagas, Rajesh to Sattvic. Okay. Swamiji, every Sunday you address to students on your उसके बारे में भी आप कहें।
अभी तो बंद हो गया है, अभी मतलब बहुत अवे फॉर 4 months and अभी नहीं शुरू हुआ है. આપણે રવિવારે તમે સ્ટુડન્ટ હું કરતા હતા પણ પછી વિદેશ જવાનું છે અને આ બધું Yeah, બંધ yeah. અટકી પડ્યું છે. Swamiji has on YouTube thousands of pravachans. So those who are interested, first of all, Satvik कब बढ़ेगी तब सम्राट को पूछना. Samrat will ask me and I will approach you. But there must be some requirement. Otherwise it does not work. Come on, Janvi. ચલો. Come back to you now. They say the ball is in your court. That. Microphone છે? Good evening, sir. Sir, sometimes when we achieve success, and then, sir, when it is continuous, so, sir, then, Guruji, we feel that now next what to do. So, we need to continue with her work, or what should we do to balance it? So it gets balanced